हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 14 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनटीपीसीज इनिशिएटिव्स। यहाँ पर एनटीपीसी की जो पहल है उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट CO2 to methanol conversion plant has been inaugurated by NTPC at its Vindhyachal facility. And second, NTPC has also developed and tested first indigenous catalyst for methanol synthesis. और आपको बताना है यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर एनटीपीसी से संबंधित करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। So, world's first CO2 to methanol conversion plant has been inaugurated by NTPC at its Vindhyachal facility, and this coincides with the company's 50th Raising Day celebration. So, NTPC Chairman Gurdeep Singh highlighted the company's ongoing initiatives in green technologies, and these initiatives include work on Gen 4 ethanol, green urea, and sustainable aviation fuel. So, NTPC has also developed and tested first indigenous catalyst for methanol synthesis, and during the event, NTPC also launched hydrogen-fueled buses in Leh. ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में एनटीपीसी के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city from West Asia and which country from all over the world have topped the Brand Finance Global City Index 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, पश्चिम एशिया का कौन सा शहर और दुनिया भर का कौन सा देश ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं पेरिस एंड टोक्यो, दुबई एंड पेरिस, टोक्यो एंड न्यूयॉर्क, या फिर दुबई एंड लंदन। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये शहर और जो कंट्री है वो है लंदन एंड यूके, सॉरी दुबई एंड यूके। आप देख सकते हैं, दुबई from West Asia and London of UK topped the Brand Finance Global City Index 2024 respectively. London, Paris, and New York City retained the top 3 spots in the Global City Index 2024. So Dubai ascended to 5th position and topped the West Asia region with improved reputation perceptions, and Dubai's growth in the ranking showcases its increasing global influence and reputation. European cities dominated the culture and heritage pillar, claiming 17 out of 20 top spots in the index. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of India's neighboring countries is building the Gelefu Mindfulness City to promote economic growth, wellness and sustainability? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश आर्थिक विकास, कल्याण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए गेलेफो माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, श्रीलंका, भूटान या फिर चाइना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ऐसा करने वाली कंट्री है भूटान। आप देख सकते हैं, भूटान टू बिल्ड गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, वेलनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। सो दिस प्रोजेक्ट covers over 2500 square kilometer and it aims to foster economic growth, wellness and sustainability.
So the project includes key sectors like ecotourism, green spaces, wellness centers, and business in finance, healthcare, and technology. $100 million bond is being launched to fund infrastructure, green energy, and connectivity for the city. And the initiative aims to create jobs, attract investments, and improve the country's economic landscape. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Animal Welfare Board of India. यहाँ पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द AWBI is a statutory body, and second, the AWBI consists of 28 members including 6 members of parliament. और आपको बताना है कि AWBI से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, बिकॉज all the pet shops and dog breeding centers in the NCR have to register with the Delhi Animal Welfare Board. ऐसा अभी हाल ही में निर्णय है जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। सो AWBI की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया 1962 में अंडर सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, और इसकी फाउंडर रही हैं लेट श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडल, जो कि एक प्रोमिनेंट ह्यूमैनिटेरियन रही हैं। सो इस बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसका रोल होता है स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी होता है ये फॉर एनिमल वेलफेयर लॉज, एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स एनिमल वेलफेयर इन इंडिया। सो इसके फंक्शंस होते हैं इंश्योर एडहेरेंस टू एनिमल वेलफेयर लॉज, provide grants to animal welfare organization, and also to advise the government of India on animal welfare matters. आप ध्यान देंगे कि इसका जो कंपोजिशन होता है उसकी बात करें तो इसमें 28 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 6 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें से 2 राज्यसभा से होते हैं और 4 मेंबर होते हैं लोकसभा से। और जो टर्म होता है वो 3 ईयर फॉर ईच मेंबर्स होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which Indian city was the Russian Business Center inaugurated in November 2024 in order to enhance business ties between India and Russia? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए नवंबर 2024 में किस भारतीय शहर में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर कोलकाता। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं द रशियन एम्बेसी इन इंडिया इनॉग्रेटेड द रशियन बिजनेस सेंटर इन न्यू दिल्ली टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज, and the center will offer co-working spaces, host event, and provide analytical support for business missions. So the opening event was attended by Russian Ambassador Denis Alipov and Sergei Chermin, and it focuses to promote business and economic cooperation between the both countries. सो आप ध्यान रखेंगे रशियन बिजनेस सेंटर हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to NATO, consider the following statements. यहाँ पर NATO से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है
NATO was established immediately after the First World War to prevent further conflicts in Europe. And second statement, the principle of collective defense is enshrined in Article 5 of the North Atlantic Treaty. And statement third, NATO focuses NATO's focus has expanded beyond collective defense to include crisis management and cooperative security. और यहां पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपको बताना है नेटो से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो नेटो वाज फॉर्म्ड इन 1949 टू प्रोवाइड कलेक्टिव डिफेंस स्पेशली अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। And the alliance originally had 12 members, but it now includes 32 countries. And NATO's military structure include strategic commands for planning and operations, and integrated military forces enable member states to contribute to collective defense. So आप ध्यान रखेंगे, नेटो को स्टैब्लिश किया गया था 1949 में विद द साइनिंग ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी इन वाशिंगटन डीसी। आपने देखा कि इसमें 32 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें कि 30 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन। कि हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following organizations are involved in the executing the Animal Health Security Strengthening Project in India? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के क्रियान्वयन में शामिल है। आपके ऑप्शंस हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड बैंक। और ऊपर दिए गए इन कोड्स का उपयोग करके आपको बताना है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस परियोजना में शामिल हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट जो भारत में है, इसमें जो इससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। आप देख सकते हैं। So India launched the Animal Health Security Strengthening Project for Pandemic Preparedness, and the project will enhance India's capacity to prevent, detect, and respond to animal health threats. So approved by the Pandemic Fund, which was created by G20 in response to COVID-19. The Pandemic Fund aims to help countries identify and contain future pandemics, and the project involves collaboration with the ADB, World Bank, and FAO to be completed by August 2026. And the project focuses on boosting laboratory systems, surveillance, and human resource capacity, also strengthening data systems and risk communications are the key project outcomes. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।